I, Dr. Kalicharan Modak, on behalf of IPS Academy and AICT Atal Academy, I welcome you all to the program on Entrepreneurship on Wheel, Navigating the Mobile Business Landscape from 21st of October to 26th of October 2024. So, my dear friends, this is the second session of day 5, and today we are having Ms. Kavita Kosarwal ma'am, the co-founder and CEO of Orcom Advertising. Kavita Kosarwal ma'am is the director and CEO of Orcom Advertising. Began her early career in journalism with leading Hindi news channel Aaj Tak. After dabbling in journalism, she decided to be an entrepreneur and co-founded Orcom Advertising along with her husband in the commercial capital of Madhya Pradesh, Indore. Hailing from a business family, the spirit of standing on her own and turning up as a true entrepreneur was in her DNA. Her primary focus was to cater the tier 2 and tier 3 cities and help brand grows from these cities. With her high level of energy and deep understanding of grassroots marketing, Kosarwal has managed to create some exciting communication strategy for their clients. Today, based out of Indore, she manages clients from the east and south market. Her belief as entrepreneur is that there is a huge potential for business in smaller cities, providing you are able to understand the market there and provide the right solution. So on behalf of IPS Academy, I welcome you, ma'am. So huge round of applause for ma'am. Now I would like to call Vinita ma'am for presenting a floral welcome to ma'am. Thank you so much, ma'am. So without doing much delay, now I would like to hand over this stage to you. Thank you so much, ma'am. Hi. Afternoon sessions are generally very boring. Hello. भी नहीं मुझे करना है क्योंकि एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ जो हमने सीखी है पिछले 15 साल में ना कि किसी को ज्ञान नहीं चाहिए और भारत में सबको ज्ञान देना है. तो व्हेन वी वर वर्किंग फॉर दैनिक भास्कर एंड दिस इज समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम मिस्टर सुधीर अग्रवाल. सो इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द इफ़ यू हैव सीन नो नेगेटिव लिव नो नेगेटिव यदि दैनिक भास्कर में देखा है तो दैट इज़ आर कम्युनिकेशन दैट वी हैव डन. एंड तो काफ़ी इंट्रैक्शन हुआ और हम लोगों ने जो भी सीखा है वी हैव लर्नड इट ऑन जॉब. तो आई जस्ट शेयर माई स्टोरी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गोविंदा टाइप स्टोरी. तो आपको मज़ा भी आएगा. उसमें IPS का भी हिस्सा है तो थोड़ी सी होप भी बढ़ेगी. तो मेरा नाम कविता है. आई कम फ्रॉम इटारसी. इट्स नियर भोपाल एंड इट्स अ स्मॉल टाउन और टिपिकल मारवाड़ी फैमिली. तो जर्नी वहाँ से शुरू होती है वेयर जॉब ऑफ अ वुमन इज़ कि पंखा चालू कर दे, पानी ला दे, यू नो दैट वाज द थिंग. तब पता था कि कुछ ये तो नहीं करना है. क्या करना है वाज नेवर द थिंग. So we were sent to Hyderabad by our family because we came from a very affluent family. And the basic task, and I'll tell you how these things culminated in what we are doing today. So the basic task was कि अंग्रेज़ी सीख लो बस और कुछ नहीं करना. घर वालों ने बोला मारवाड़ी हैं, पैसे हैं, तुम तो हैदराबाद जाओ, बस इंग्लिश सीख लो. तो we were sent to Hyderabad and a boutique public school. तो मैं और मेरे 2 cousins हम दोनों गए और हम 3 लोग गए इटारसी से. और उन लोगों के लिए इटारसी वाज लाइक अ सर्कस क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में इन 92 यू वुड हार्डली सी पीपल फ्रॉम MP एंड ट्रैवल वाज रियली नॉट वेरी डन थिंग. तो हम लोग गए तो पहले ये मैं सबको बताती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू नो वेयर अ जर्नी कैन बिगिन. तो लोग पूछते थे आर यू फीलिंग होम सिक. तो मैं बोलती थी नो. क्योंकि होम और सिक क्योंकि हम पढ़ते थे गुरु नानक पब्लिक स्कूल में. तो अभी भी आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे जिनको इंग्लिश अभी भी समझ में आती नहीं होगी. तो होम और सिक 2 कंबाइन करके घर पे कोई बीमार है नहीं है. और हम रोज़ आपस में बात करते थे अरे पूछते क्यों घर पे कोई बीमार है, कोई है ही नहीं. तो इट टुक अस 6 months टू डिस्कवर कि होम सिक इज कि यू आर मिसिंग होम. सो एंड वी वर जस्ट व्हाट वी वर 10-11 year old. तो what we learned there, and I'll relate these characteristics in how an entrepreneur is built. तो ना एक पेशेंस था हमें.
पेशेंस क्या था, ईगो इतना था, छोटे गाँव से होते हो तो हम कैसे पूछें। तो हमने 6 महीने लगा दिए डिस्कवर करने में कि कोई आएगा हमें बताएगा कि भाई होम सिक घर पे कोई बीमार नहीं है, तुमको घर की याद आ रही है क्या। चलो दैट वाज स्टेप 1। एक्सेल्ड, समझ में आया, चीज़ें समझी। और एक ना स्मॉल टाउन के, मेरे को आपके सबके चेहरे देख के लगता है आप अधिकतर लोग स्मॉल टाउन से हो। एक स्मॉल टाउन में ना जुझारूपन बहुत है, हमें एंथुजियाज्म तो भर भर के है, तो वी ऑब्जर्व थिंग्स एंड वी फिगर आउट ऑन आवर ओन, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर एम्बिशियस, वी वांट टू डू समथिंग। तो फिर वो हमारे दैनिक भास्कर के कम्युनिकेशन में हमने काफ़ी डाला है, जहाँ छोटे शहर के बड़े सपनों की हमने बातें की है, क्योंकि हम सब वही लोग हैं ना कि हम छोटे शहरों से आते हैं एंड वी वांट टू मेक बिग इन लाइफ। ठीक है, डिड दैट एंड गेस व्हाट, आफ्टर आई फिनिश माई 12th, तब तक हम एकदम पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड हो चुके थे। धम, आई कम बैक टू IPS अकेडमी। घर वाले बोलते हैं कम क्लोजर होम। आई केम हियर इन 98, फर्स्ट बैच BBA। कोई कोर्स का आता पता नहीं है, BBA कोर्स है, करना है, ठीक है। टुक एडमिशन एंड इट वॉज अ कल्चरल शॉक कमिंग टू IPS, क्योंकि अब आपने इतना पॉलिश कर दिया, अब सडनली भैया क्या कर रहा है, एंड आई एम लाइक ओके यू, दैट टाइम क्राउड वाज मच बेटर, वी हैड किड्स फ्रॉम मुंबई, दिल्ली एंड ऑल दैट। ठीक है, BBA भी निकाला। नाउ व्हाट, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज अब क्या करना है। वी हैड वन मार्केटिंग प्रोफेसर, सो सत्यकांत सर, कुशवा सर, दे वर इन आवर टाइम्स एंड ऑल दैट। तो एक मार्केटिंग प्रोफेसर थे, मैंने उनसे बोला अब मैं क्या करूँ। तो बोला मैथ्स तुझसे होगा नहीं तो कैट तो भूल जा। ठीक है, कैट नहीं तो क्या। तो उन्होंने बोला ढूंढ कोर्स। तब आइडिया आया मास कॉम का। ठीक है, कैट लिखा ही नहीं, गॉट इन टू अ कॉलेज इन मास कॉम। मास कॉम भी 2 साल बढ़िया बैंगलोर में निकाले मज़े से। अब क्या, वो जो आजकल की जनरेशन का भी क्वेश्चन होता ना, आई डोंट नो, आई एम फिगरिंग आउट, पर तब इतने फैंसी वर्ड्स आते नहीं थे, तो अब बोलते थे अब क्या, चलो देख रहे हैं, कर रहे हैं। मास कॉम भी कर लिया। अब हमारे साथ ना बड़े स्ट्रगलिंग बच्चे पढ़ते थे, मतलब कलकत्ता वगैरह से भी थे, वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज इट्स अ वेरी लेफ्टिस्ट मेंटालिटी एंड दे हैव अ वेरी लेबर काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस कि तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो और तुम लोग। तो गलती से ना मैंने सेकेंड ईयर में टॉप कर लिया, और एक जो हमारा बंगाली क्लासमेट था वो आके मुझसे खूब लड़ा, हाउ कैन यू टॉप। मैं बोला यार मैंने मेहनत भी नहीं की थी, बट आई टॉप्ड। ही सेड बट यू डोंट डिजर्व इट। आई सेड तू कह तो सही रहा है, एंड इट इरिटेटेड मोर कि ये एक्नॉलेज भी कर रही है। मैंने बोला भाई अब क्या। ओके, देन आई फाउंड अ बॉय हु इज़ लाइक माई पार्टनर, ही इज़ माई हस्बैंड एंड पार्टनर इन माई एजेंसी, एंड ही केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इन इंदौर। So the task, original task of excelling was given to me after my post graduation. He said तेको शादी करना है तो नौकरी करना पड़ेगा। तो पहली बार नौकरी का आइडिया जीवन में चमका कि अच्छा नौकरी भी होती है जो मुझे करनी पड़ेगी। So I said अब क्या करूँ नौकरी में, because the way education is, and we keep talking about it because we consult a lot of universities and school, actually you're never ready for the world. हम जो पढ़ा रहे हैं और जो दुनिया में हो रहा है ना, there's a huge disconnect and nobody is addressing it. That is the biggest challenge. Okay, so I told him give me 2 days time, I'll do something. ठीक है, after 2 days I come out and I tell him I want to be a journalist, and he looked at me and he said जितने ऐश आराम में तू रह रही है, because I didn't even know what journalist does. ठीक है, did an internship with Z, got into Sahara, and एक चीज़ समझ में आ गई, वही स्मॉल टाउन मेंटालिटी। पैसे तो पापा के पास थे, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट डू यू वर्क फॉर। यू वर्क फॉर फेम, यू वर्क फॉर पावर एंड यू वर्क फॉर मनी। फेम गांव में थी, सब जानते हैं, पैसे भी हैं, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज़ पावर। आई क्विकली रियलाइज कि यार ये पावरफुल तो है, एंड इन बैंगलोर TV was booming and I was lucky enough कि जब TV industry was taking up, going to Aaj Tak. But before I got into Aaj Tak, and like I told you, industry does not prepare you. So my first day in Sahara, my assignment calls me and he said, साले क्या कर रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस बैंगलोर में। तो मैंने बोला होंगे। अब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर, मैं क्या करूँ। तो he said होंगे नहीं, तुम्हें जाना है। तो my basic question is अच्छा मैं कैसे जाऊँ। That is how college prepares kids and there's nothing wrong in it.
सो ही अब्यूज्ड, वो टिपिकल बिहारी जो होते हैं असाइनमेंट इस पे, उन्होंने 5-7 गाली बकी. तो मुझे समझ में आया अच्छा कुछ करना पड़ेगा. आई हैड जस्ट वन नंबर एंड रघु सर, ही इज़ अ अथॉरिटी ऑन डिफेंस, ही राइट्स ऑन डिफेंस. आई जस्ट कॉल्ड हिम, आई सेड रघु सर, पहला दिन है नौकरी पे, आपको बचाना है. तो उन्होंने बोला चाहिए क्या? ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस आए थे. उन्होंने बोला आए थे. मैंने बोला उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बोले और चले गए. तो मैंने बोला क्या बोला? क्योंकि मेरे को तो डिफेंस भी नहीं आता था, मतलब बेसिक ही नहीं आ रहा. तो डिफेंस कौन से आप जहाज खरीद रहे हो, कौन से वेपन खरीद रहे हो? तो आई सेड नाउ व्हाट डू आई डू? ही सेड गो टू एयरपोर्ट, यू विल फाइंड हिम. आई वेंट विद माई ड्राइवर एंड नाउ सेकेंड थिंग the small town people have is courage. Now the VIP entrance, आप सोचिए डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्वे जा रहा है, मैं गाड़ी से कूद के यो कर रहा हूँ. एंड ही लाइक हु इज इट? एंड ही जस्ट सॉ अ गर्ल, आई वाज व्हाट 24, एंड ही स्टॉप द कार एंड ही सेड क्या? आई सेड सर नौकरी का पहला दिन है, आपने कुछ बोला है? ही सेड मैंने बहुत कुछ बोला 1 घंटे में. मैंने बोला नहीं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दो जो आपने बोले. I might have sounded stupid, right? But that was a beginning of my friendship with George Fernandez, late defense minister. And he just got down from the car, he gave me the bite. And he's like, यार दम तो है. वो दम के साथ stupidity भी थी कि भाई अब आप करोगे क्या? Because you have no one to ask. He gave me the bite, everything went on. Then got into Aaj Tak and फिर बॉस ने बोला पॉलिटिक्स भी कवर करना है. ठीक है कर लेंगे. पर पॉलिटिक्स होती क्या है? हमको तो सिर्फ वोट देना ही आता है. जाति समीकरण क्या होते हैं, सीट कितनी होती है, मेरे को तो ये भी नहीं पता थी. और वहाँ पे एक कैमरामैन जस्ट इंस्टिगेटेड मी, ही सेड तुम बिहारी आके हमारी नौकरी खाते हो, तो एक काम करो, तुम तो ना छुट्टी ले लो अभी क्योंकि चुनाव है. परसिवरेंस. आई वेंट टू वन ऑफ द MLAs. आई सेड सर टिकना तो है, अब आप सिखाओ पॉलिटिक्स होती कैसे. He actually took a class for me for 3 days explaining me कौन सी विधानसभा में कौन सी सीट होती है, कौन सी जाति वाले किसको वोट करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होता है. I learned it. 7 years like this and my one of the story was nominated for national award क्योंकि 1 साल बेवकूफ़ियाँ करने के बाद आपको समझ में आ गया अब करना क्या है. You could figure out. Finally when I quit Aaj Tak in 2008, so I come from a Marwadi family. तो तब समझ आ गया अच्छा चलो पावर मिल गया, अब सब हो गया. वी केम बैक टू इंदौर. कमिंग बैक टू इंदौर द आइडिया वॉज कि कुछ अपना करना है. अगेन द क्वेश्चन करना क्या है. तो वी माई हस्बैंड कम्स फ्रॉम अ एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड एंड ही इज़ अ क्रिएटिव गाय एंड आई हैव अ डिसेंट नेटवर्किंग और ठीक ठाक कनेक्शंस हैं. तो हम लोगों ने सोचा एडवर्टाइजिंग कंपनी स्टार्ट करते हैं. नाउ इट्स बीन 15 years दैट वी आर रनिंग अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. We have clients like Mr. Jagan Mohan Reddy, who is the ex-Chief Minister of Andhra Pradesh. We work with Mr. Mohan Babu. Now, few things as an entrepreneur that I feel that we have learnt over the years is, you have to be ever evolving. There's some of the things, some of the films that I want to show you. So if we can just show it on YouTube. And every film has a story. And I'm sure you would have seen it. It's just 1.5 minute. तो लिव नो नेगेटिव यदि आप लोगों ने कैंपेन देखा है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चला है वो कैंपेन. तो हम लोग सुधीर अग्रवाल जी के साथ काम कर रहे थे एंड हिज ब्रीफ वॉज कि हमको ना कुछ डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है, तो हम क्या करें. तो ही सेड हम ना नेगेटिव खबर नहीं छापेंगे. ठीक है, आगे क्या, हाउ डू यू मेक इट बिग. सो वी क्रिएटेड 2 films. आई जस्ट शो यू अ केस फिल्म just for you to know the impact of communication and how communication after certain point becomes irrelevant also. मतलब वो communication relevant था 7 साल पहले, पर आज की डेट में वो शायद इतना relevant नहीं है. Case we'll just have to जैसे मैं आपको कहूँ तुझे पता है, what would be your reaction? कुछ तो negative बोलेंगे. या हम किसी लड़की को अकेले जाते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, या कोई लड़की मायूस सी बैठी है, बिकॉज दैट इज हाउ आवर माइंड इज ट्यून्ड. क्योंकि इतनी नेगेटिव चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं डिजिटल पे. तो दैट इज व्हाट वी टुक एज अ बेस
यदि आप देखेंगे हमने अपने अपने माइंडसेट बना लिए थे, वो लड़की जा रही है बस से निकल के तो हमको लग रहा है किडनैप होने वाला है, एक लड़की पार्किंग में जा रही है तो कोई उसका रेप करने वाला है, या वो बंदी झूले के लिए रस्सी लगा रही है तो सुसाइड. We had in fact thought of much grosser idea, but we thought people will not be able to digest it. So the anchor of the whole campaign was this, and then we led it with this whole idea of how we should stop thinking negative. जो आजकल in general younger generation में भी होता है ना कि बहुत जल्दी mental issues हो जाते हैं, mental health is a biggest challenge for people. Now to weave this campaign, and this campaign they still run it. It's been 7 years. तो अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग नेगेटिव खबर नहीं छापेंगे. हमारा इंटेंशन बड़ा अच्छा था, बट व्हेन वी स्पोक टू पीपल, व्हेन वी डिड अ रिव्यू ऑफ अ कैंपेन, और हमने जब लोगों को कॉल करके पूछा कि आपको क्या लगता है भास्कर वाले पैसे खा रहे हैं इसीलिए खबर नहीं छाप रहे हैं, तो वी थॉट ओके, इट इज़ अ बैड इम्पैक्ट. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, वी स्टार्टेड पुटिंग अ रेड line. If you see on Mondays now also, there is a red column that shows कि ये खबर आपके लिए जानना ज़रूरी है, and hence you know we are showing this news to you. Now here the point that here I'm trying to make is कि हर साल यदि आप देखेंगे ना, आप देखना हर कम्युनिकेशन की एक टोनैलिटी होती है, वो हम लोग जो आम आदमी उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको नहीं पता होता है, पर एक मार्केट में लीडर होता है जो वो टोनैलिटी डिफाइन करता है. आपने यदि 3 साल पहले ध्यान दिया होगा तो जब दीपिका पादुकोण ने केम आउट कि यू नो आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, तो एवरी प्रोडक्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वी अंडरस्टैंड यू, वी केयर फॉर यू, डोंट वरी, एवरीबडी इज बिकॉज एवरीबडी थॉट ओके दैट इज द इन थिंग. नाउ हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैच द ट्रेंड, एंड ट्रेंड गोज अक्रॉस. मतलब हमारा टीजी 13 साल का बच्चा भी है और 70 साल का बुजुर्ग भी है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस इट. जो 13 साल का बच्चा है वो आज हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर नहीं है, बट व्हेन ही टर्न्स 30 he'll be my consumer. Another challenge that time and again we face with a category like newspaper is, मेरे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं ना उसमें 80% बच्चे खुद अखबार नहीं पढ़ते, because the habit of reading newspaper is long gone. So that is another challenge we have been addressing. तो हम लोग जो कुछ देखते हैं around us, मतलब for example just to relate to it, राहुल गांधी पप्पू ओवरनाइट तो नहीं बना है ना. There is a strategy which made it, which ensured, and you saw it everywhere. मतलब मैं अभी किसी youngster से बात करी थी who is studying in Korea University, तो he is a Modi follower and he was telling me, तो if not ma'am, if not Modi then who? तो ये हमारे दिमाग में कैसे आया, ये आप लोग बैठ के थोड़ी ना सोच रहे हो. So that is a power of communication, and actually that starts from school and colleges also. So if I connect it back to my education, when I was studying in Hyderabad, there's a very strong motto that we had in our school. It was called Mind Without Fear. And if you know Rabindranath Tagore's poetry, that was our anthem, school anthem, where the mind is without fear and the head is held high. Now that is a part of my character. So when Kushwa sir asked me ना कि you have to speak to teachers, तो मैं बोला यार मेरी ना बहुत से complaints है education system से, तो हो सकता है मैं teachers से बात करूँगी तो it might reflect in class. हो क्या रहा है ना, increasingly हम लोग relatable बना ही नहीं रहे चीज़ें जो कि एक बच्चा accept करे. For example, यदि मेरा स्कूल कहता है mind without fear, we could see it everywhere in our school. मतलब इटारसी से जब हम हैदराबाद गए and we saw kids dating, we were like, oh, यहाँ तो ऐसे अफेयर चल रहे हैं. But they were like, yeah, that is part of growing up. It happens. That is mind without fear. So, unfortunately, what is missing, I'm not saying in a university or a private school or whatever, in general, what is missing in education is, हम लोग teach नहीं, हम preach कर रहे हैं. अब फिलिप कोटलर तो हमको भी पढ़ा दी, आज तक ना कोटलर की एक लाइन मेरी स्ट्रैटेजी में काम नहीं आई है, because whatever Kotler has written, he's written for all the American companies. There's nothing relevant for Indian companies. There's one more film that I'll show you. This is another campaign. आप लोग दिवाली आ ही रही है और अब आप ये एड्स देखेंगे सार्थक दिवाली के, तो हमारे पास हमेशा ब्रीफ होता था कि
लोगों को बोलो कंट्रीब्यूट करें। तो हमारा क्वेश्चन होता था क्यों भाई, वाई शुड आई कंट्रीब्यूट एंड वाई आर यू आस्किंग एज अ ब्रांड। यदि आप एक अखबार हो और आप मेरे को बोलते हो मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप कंट्रीब्यूट करो, मैं क्यों करूँगी? मेरे पास खुद के पास अपने स्ट्रगल्स हैं। सो व्हेन वी वर गिवन दिस ब्रीफ, ये फिल्म के लिए उन लोगों ने हमें पैसे भी नहीं दिए थे। वी रोट द स्क्रिप्ट एंड वी थॉट, एंड सेम फिल्म वी हैव डन विद दीपिका व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर बाजीराव मस्तानी, सो इट मस्ट बी समवेयर ऑन द यूट्यूब। अब सेम स्क्रिप्ट दीपिका पादुकोणे बोल रही है और एकदम डेकअप होके बोल रही है, आप लोग गरीबों को ये दीजिए। इट इज़ सो अनरियलिस्टिक। एंड व्हेन वी डिड दिस फिल्म, अल्टीमेटली दे बॉट दिस फिल्म फ्रॉम अस, एंड द किड्स दैट यू सी, दे आर रियल किड्स फ्रॉम स्लम्स। और ये डायलॉग उनको दिए नहीं गए, वी जस्ट मेड अ ब्रॉडर आउटलाइन कि क्या मिस करते हैं बच्चे। हम लोग जनरली फिर अगेन छोटे शहरों में हम नहीं देखते दिवाली के अगले दिन जो बच्चे होते हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, वो पटाखे उठा के वो फोड़ते हैं, एंड यू कुड सी द सेम सेंटिमेंट्स, बिकॉज वो सेंटिमेंट लोअर क्लास के चेंज नहीं हुए। तो जब ये फिल्म बन के आ गई एंड द ओनर ऑफ दैनिक भास्कर सॉ दिस फिल्म, ही सेड नाउ व्हाट डू वी डू। नाउ दे इन्वाइटेड ऑल दीज किड्स टू भोपाल ऑफिस, क्योंकि जब वो अपने स्टाफ को भी कहते थे ना कि भाई सार्थक दिवाली है, हम चाहते हैं आप कंट्रीब्यूट करो, तो स्टाफ कहता था खुद तो कुछ कर नहीं रहे, ऐड छाप रहे और हमको बोल रहे हैं बच्चों के लिए पैसे दो, क्योंकि बिलीवेबिलिटी मिसिंग है। मुझे लगता है ना कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो ब्रांड से हम लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो दैट इज व्हाट वी टेंड टू एड्रेस इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपको रिलेटेबिलिटी, जब आप एक बच्चे को देखते हो और आप उसका स्ट्रगल देखते हो, तो लाइक स्लम डॉग मिलियनेयर, वी हैड टेकन देम टू भोपाल, उनको हम लोगों ने नए कपड़े दिलवाए, यू नो, एंड नाउ दैनिक भास्कर इज टेकिंग केयर ऑफ देयर एजुकेशन। नाउ अगेन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है 3 बच्चों की ज़िंदगी बदली है, बट बदली है, और जो इन्फ्लुएंस आया है वो इतना बड़ा होता है कि हमारी फिर आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार डोनेट कर रहे हो दिवाली पे, नेक्स्ट टाइम भी आपको लगता है मुझे कुछ अच्छा करना है, और ये सेंटिमेंट पिछले 10 साल में इंडिया में काफ़ी बदला है। अब हमको लगता है कि मेरे स्ट्रगल खत्म हो गए हैं, नाउ आई वांट टू डू गुड फॉर सोसाइटी। तो आप देखेंगे इन जनरल डोनेशंस जो है, चैरिटीज़ है, वो काफ़ी बढ़ गई है, हर व्यक्ति अपने लेवल पे करता है। तो मतलब ड्यूरिंग कोविड, आई लिव इन अपोलो डीबी सिटी, सो वन ऑफ माई गार्ड वॉज टेलिंग मी कि सारे गार्ड्स मिल के एक्चुअली खाना बनाते थे एंड दे वुड गिव इट टू द पीपल दोज हु वर ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार। तो ऐसा नहीं है कि आप सक्षम हैं कि नहीं है। सो दिस वॉज वन मोर फिल्म दैट वी हैड डन. There's one last film that I'll show you and I'll just tell you how. So this is a film that we had done for, you all know, you all know, it is one of the fastest growing education company. It is owned by Mr. Ronesh Screwwala. अब हमको क्लाइंट के एंड से क्या चैलेंज आता है, सारे IIM वाले होते हैं और उन्होंने भारत का भी देखा ही नहीं होता है, क्योंकि सब मेट्रो में रहते हैं और उन सबका थॉट प्रोसेस मेट्रो वाला ही रहता है. तो द आस्क हियर वाज, उन्होंने कहा आप ऐसा कम्युनिकेशन बनाओ हमको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी के लिए, एंड दिस इज़ स्मॉलर जॉब्स, मतलब जो कंडक्टर हैं, स्टेशन मास्टर हैं, बैंक क्लर्क हैं, ये हम IAS IPS की बात नहीं कर रहे हैं. तो उनका था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए. ठीक है, तो सारे IIM 20 IITs बोले लेट्स क्रिएट समथिंग विटी, ह्यूमरस. ठीक है, तो वी टुक 15 days टू टेल देम कि जिस स्टूडेंट से आप बात कर रहे हो उसको विटीनेस समझ में आएगी नहीं, उसको ताने समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि वो जिस सेगमेंट से आ रहा है देश के, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है. उसके फादर गरीब हैं, उसके फादर उससे हर साल पूछते हैं बेटा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अब जब आप सेकेंड देखते हैं जहाँ हम घूस की बात कर रहे हैं, तो बहुत इंक्रीजिंगली हमारे यहाँ जो सिस्टम है वहाँ सब मान के चलते हैं सरकारी नौकरी में है तो कुछ तो ऊपरी कमाई होती होगी. तो कोई भी आप देखना सेंस ऑफ प्राइड नहीं लेता है सरकारी ऑफिसर. वो IAS वगैरह है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज दे जस्ट टेक इट कि ठीक है मुझे कुछ नौकरी करनी है, कुछ सिक्योर चाहिए. एंड हेंस वी केम अप विद दिस होल आइडिया ऑफ जीत के सही मायने, वेर एन वी ट्राई टू क्रिएट दैट एस्पिरेशन एंड सेंस ऑफ प्राइड कि इट इज़ नॉट अ स्मॉलर थिंग. यदि आप क्लर्क भी बन रहे हो तो आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी जर्नी अलग है, हम सबकी जर्नी अलग है. लाइक आई टोल्ड यू, मेरी जर्नी अलग है, आप लोगों की जर्नी अलग होगी. सो द चैलेंज वॉज टू टेल पीपल सिटिंग इन बैंगलोर कि यदि आप उसको टीज करोगे या ताने मारोगे कि अरे क्या कर रहा है, मतलब उनका स्क्रिप्ट ऐसा था, अरे क्या कर रहा है चलो ट्राई कर,
तो वी वर लाइक वो बच्चा वैसे ही ट्राई कर रहा है और उसका IQ और एक्यूमेन उतना है, हो सकता है उसको 4 अटेम्प्ट लगेंगे, तो हम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमको उसकी तरफ एम्पैथी दिखानी पड़ेगी. इट्स नॉट सिंपैथी. इफ यू सी देयर इज नो सिंपैथी हियर, इट इज एम्पैथी एंड एस्पिरेशन. नाउ if you see, this type of communication is dead now. Now everything is more of satire. आप देख लीजिए, अब कम्युनिकेशन की टोनैलिटी बदल गई है, बिकॉज हर ब्रांड दे ट्राइंग टू रिलेट विद जेंजी. और मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों. पैसे उनके पास है नहीं, मतलब इफ दे नीड दे हैव टू टेक मनी फ्रॉम पेरेंट्स, सो दे आर ट्राइंग टू बी विटी. इफ यू हैव सीन द एड ऑफ मैनफोर्स, ये जोमेटो के हम ऐड देख रहे हैं, वो वैसे ही आ रहे हैं. और वो बड़ा कम्युनिकेशन का जो स्तर है वो बड़ा नेगेटिव. आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे. अभी रिसेंटली वी डिड वन थिंग, जहाँ पे ये जो लड्डू वाला कांड चल रहा था, जहाँ पे बोला था कि जगन रेड्डी ने गाय के मांस मिला लड्डू. अब हमारे पास उनकी वाइफ का फ़ोन आया, उन्हें बोला यार बट दैट्स नॉट अ फैक्ट. ओके, ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो शी आस्क्ड मी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट क्या है. और उसी वक्त ना हमारे घर से कोई तिरुपति से आया था, तो मैं घर वालों ने बोला तिरुपति के लड्डू मत खाना, उसमें गाय का मांस है. तो मैं बोला दैट इज इम्पैक्ट, कि जो बंदा इटारसी में बैठा है वो सोच रहा है तिरुपति के घी में गाय की चर्बी मिली हुई है, तो दैट मीन्स यू हैव नॉट डन योर बिट. नाउ द पॉइंट हियर इज द प्लेटफॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव आल्सो चेंज्ड. नाउ जो घर में बैठी महिलाएं हैं ना, वो भी अखबार में सरिता मनोरमा नहीं पढ़ रही है, वो व्हाट्सएप के फॉरवर्ड देख रही है, और उसको कोई क्यूरेट कर ही नहीं रहा है. तो व्हाट वी डिड, वी केम अप विद अ स्ट्रैटेजी wherein it was a fact and we said but भारती मैम was constantly telling me but हम लोग सही हैं ऐसा. मैंने उससे सुन कौन रहा है, आप सही हो, आप विजयवाड़ा में बैठे हो, इटारसी की महिला तो सोच रही कि आपने गाय की चर्बी मिलाई है वहाँ के लड्डू में. एंड एक्चुअली पीपल स्टॉप कंज्यूमिंग तिरुपति के लड्डू. सो वी रैन अ कैंपेन कॉल्ड शेम ऑन यू बाबू ऑन ट्विटर. और फॉर आर लक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया एंड ही टोल्ड चंद्रबाबू नायडू एंड ऑल द पॉलिटिशियंस दैट यू शुड नॉट ब्रिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स. सो जो हमारा कैंपेन था इट वाज वैलिडेटेड मोर. नाउ कट टू मेरे घर से फोन आता है, नहीं नहीं लड्डू सेफ है, खा लेना. अब दो चीज़ें हो गई कम्युनिकेशन के साथ, या हर चीज़ के साथ, जो डेंजरस भी है और जो अच्छी भी हो सकती है. एक तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट. आप आज कुछ करो, यू वुड नो विद इन सेकेंड्स. और सेकेंड चीज़, ये सबके हाथ में आ गया है. आपकी काम वाली बाई भी वही वीडियो देख रही है जो घर की मालकिन देख रही है. कोरियन ड्रामा सारे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं. पॉप जो हम लोग छोड़ के आ गए थे, दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय आवर जनरेशन. नाउ इन वन वे इट्स गुड. नंदन निलकनी ने लिखा था वर्ल्ड इज फ्लैट. ओके, इट इज फ्लैट, बट व्हाट आर वी डूइंग विद दिस. आप अभी भी आपके आई एम श्योर स्टूडेंट्स को देखते होंगे क्लास में, दे लीस्ट इंटरेस्टेड. आप क्या बोल रहे हो, उनको एग्जाम लिखना है, मेरे को जाना है. पर जब वो स्टूडेंट हमारे यहाँ काम करने आता है ना, यू कैन नॉट बिलीव. सो आई विल शेयर सम ऑफ द आंसर्स किड्स गिव अस. सो वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट डायरेक्टर कॉल्ड मी. शी सेड बेटा मेरे यहाँ के 5 MBA के बच्चे तो लेने ही पड़ेंगे. मतलब मैम 5 तो नहीं, 2 भिजा दो. शी सेंट 80 किड्स, 80 में से, एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी हियर. तो मैंने बच्चों को पूछा भाई और क्या करना है, डोंट नो. फिर उनका क्वेश्चन मुझसे था ऑफिस कितने बजे खुलता है. मैंने 10:30. ठीक है, मुझे ये टाइम चलेगा. ठीक है. एक बच्ची जो वहाँ की टॉपर थी, and she gave me a very beautiful answer and it was an eye opener for us also and probably we'll use it in some of our communication. She came up to me, topper. उसने ज्वाइन कर लिया. बोलती है कि मैम कल मैं नहीं आ पाऊँगी. मैं क्यों? बोले आज शिवरात्रि है. मैंने तो मैंने यू हैव असाइनमेंट्स. शी सेड नहीं, आज मैं भांग पीऊँगी ना तो कल नींद टाइम पे नहीं खुलेगी. मैं ठीक है. और एक्चुअली वो लड़की नहीं आई. और जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, मैंने बेटा
यू हैड अ कैंपेन टू डिलीवर. बोलते मैंने तो आपको पहले ही बोला था भांग पीऊंगी तो नींद कैसे खुलेगी. सो आई सैट हर डाउन बिकॉज वी थिंक ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे समझे. मतलब बेटा तो बोलती डू यू अंडरस्टैंड माई पेन. मैं कॉलेज 4 घंटे नहीं गई हूँ, आप 8 घंटे की नौकरी करा रहे हो मुझसे. दैट इज अ चैलेंज of our education system. Second, one guy came from one very big university, again happens to be my client. उसने बोला भाई एक बच्चे को रख ले, अच्छा है. मैंने बोला भाई तो कितनी सैलरी चाहिए. फ्रेशर 25 लाख दे दो. मतलब व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन टेबल, MBA डिग्री. ओके बट हाउ डू यू जस्टिफाई दैट. ही सेड देखो मेरा फीस 16 लाख का था, रहने खाने में 20-22 लाख रुपए खर्च हुए. पापा ने बोला जो करना है अभी 1-1.5 साल में कर ले, फिर मेरे को शादी करना है. नाउ दैट इज अ चैलेंज दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग टाइम एंड अगेन. विच एवर यूनिवर्सिटी दैट वी वर्क विद, वी टेल देम. मेरे को अभी कोई बता रहा था सीटें ज़्यादा है, ठीक है 900 में से 50 बच्चे तो ढंग के होंगे, उनको ज़रूरत होगी. प्रॉब्लम ये हो रहा है जो थ्योरी हम उनको पढ़ा रहे हैं एक तो वो रिडंडेंट है और उससे इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है. और वो बच्चे में एटीट्यूड आप इतना डाल के भेज रहे हो ना कि वो आता है वो सोचता है मैं तो 25 लाख का हूँ, तुम कम दे रहे हो तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ. एंड हेंस इट इज जस्ट नॉट माई प्रॉब्लम. लाइक वी हैव 40 पीपल वर्किंग विद अस. दैट इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब. हम न्यूज़पेपर के साथ काम करते हैं तो बच्चा आता है पूछता है एडिटर से आज का असाइनमेंट क्या है. एडिटर बोलता है जा सब्जी वाले से रेट लेके आ जा. मैं सब्जी वाले से रेट लूँ, CM का इंटरव्यू तो बताओ. नाउ दैट इज हिज एक्सपेक्टेशन, बट व्हाट इज हिज डेप्थ ऑफ लर्निंग वी डोंट नो. हाउ वेल इज ही प्रिपेयर्ड वी डोंट नो. नाउ माई रिक्वेस्ट इज इफ यू हैव अ इंटरैक्टिव सेशन बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस. क्योंकि हम ना, और मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ. जब हम बहुत सारे MBA के ब्रोशर्स डिज़ाइन करते हैं ना, तो जो डिज़ाइन कर रहा है ना मेरे यहाँ बच्चा, वो आता है बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से. तो हम लोगों ने उनको इंग्लिश कोर्स कराए क्योंकि हम जो पेडिगॉगी डालते हैं ना, पेडिगॉगी इज़ दिस एंड दिस इज़ व्हाट दे आर डिलीवरिंग. वो मेरे से पूछा एक दिन वो बच्चे ने, बोले आपने इंग्लिश भी सिखवा दी, मैंने 100 MBA के ब्रोशर भी बना दिए. बोले आप किसी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री दिला दो. क्योंकि वो जो बच्चों को देखता है जो निकल के आ रहे हैं ना, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी हमने बात की जो छोटे शहरों में पहले होता था, परसिवरेंस है, पेशेंस है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्क है, दैट ऑल इज इंक्रीजिंगली डिप्लीटिंग. एंड सी नोबडी एवर टॉट अस दिस. मेरे को याद नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने बोला तुझे आज से हार्ड वर्क करना है. इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ द सिस्टम. तुझे आज से बहुत ज़्यादा परसिवरेंस रखना है. मेरे घर वालों को तो परसिवरेंस वर्ड भी नहीं पता होगा अभी तक, बट ठीक है आपने सीखा. वाई? बिकॉज देयर वाज अ सिस्टम दैट वाज बिल्डिंग दैट. एंड एक्चुअली व्हेन वी ट्रैवल अब्रॉड, आई हैव बीन टू 28-29 कंट्रीज. वन थिंग दैट आई इंक्रीजिंगली सी इज हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम भी गिरता जा रहा है. हमारे यहाँ का मैन पावर का जो इंटेलेक्ट है वो भी गिरता जा रहा है. मतलब बच्चे आ जाके, जो फ्रेंड्स के बच्चे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई इनको एडवाइस करो. तो एक बच्चा बोलता है बस आंटी ये बता दो 100 करोड़ कैसे बनेंगे. मेरे को पता होता मैं भी बना लेती. मतलब आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर 15 years. नाउ हाउ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल्सो, सो आई वॉन्ट टू हैव दैट इंटरेक्शन एंड प्लीज डोंट रिकॉर्ड इट, कि हाउ कैन वी डू दैट. क्योंकि जब हम पता है हम लोग, आप और मैं मिलकर कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन में यदि थोड़ी भी ताकत है. जैसे एक और किस्सा आया था जब बहुत सारे फ़ोन आए थे हमको कोटा में, जब बहुत सुसाइड होते थे ना, तो दैनिक भास्कर वाले ने बोला माँ बाप से अपील करो बच्चे पे प्रेशर मत डालें. मतलब मेरा बच्चा मैं तो 2 छाटे मारूंगी, क्यों अपील करूँ. मतलब आप इमेजिन करो, होल सिनेरियो हैज़ चेंज्ड. अब हम माँ बाप को बोल रहे हैं आप बच्चे को डांटोगे नहीं, बच्चा फेल हो रहा है ना, होने दो. एंड मतलब वी गॉट अ अवार्ड फॉर दैट कैंपेन. Point being, because every brand is going with the flow and all of us are succumbing to what is just happening, unlike that there is a planned direction.
राइट? 2 साल पहले मेंटल हेल्थ, आप हर तीसरे बच्चे को पूछो व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव पैनिक अटैक, आई हैव एंजाइटी. किसी बच्चे को, वी हैव अनदर किड हु केम टू माई ऑफिस, शी केम इन अ मर्सिडीज. किसी बड़े आदमी का फोन है, इसको तो नौकरी देनी है. मैं ठीक है भाई भिजाओ. वो बच्ची आई, मैंने उसको बिठाया, मैं उसको पानी पिलाया, मैंने बोला एंड हाउ आर यू, शी स्टार्टेड क्राइंग. तो मुझे लगा भाई पहले ही बहुत बड़ी पहुंच आई. मैंने बोला बेटा तू ठीक है? बोली नो नो आई हैव सोशल एंजाइटी. Now, you'll be surprised. So, social anxiety is if, say, room filled with people, they will get anxious. And that actually is a term. I don't know if you know of a cancel culture, आपको पता है? You don't know cancel culture? Cool. There's a university in Chennai which teaches liberal art. तो इंदौर के 2 बच्चे गए वहाँ, और वो 2 बच्चे बेचारे अच्छे पढ़ाकू बच्चे थे. जब वो गए तो उन्होंने देखा कि लड़के क्रॉप टॉप पहन के घूम रहे हैं, एंड देयर आर फ्लूइड बाथरूम्स which can be used by both male and females. And the only conversations that they have about is LGBTQXYZ, EBPPB, whatever. And if you disagree with them, you get cancelled. So that means you are outcasted. Suppose if you are not promoting, if you are not basically supporting a X cause, suppose if she says, okay, I don't care about Palestine, I'll say you're cancelled. Yeah, it's called cancel culture. Do you know what is Riz? Riz. ये लिखने लायक टर्म नहीं है सर, मतलब आप भी हंसेंगे जब मैं बताऊंगी आपको. charisma we know. So there's something called rizzing. So rizzing a girl is impressing a girl. So it is a rizz culture. So, and unfortunately or fortunately, we are the country which has the highest number of youth population. They will be the voters. They will be choosing who will be in power. They are coming as a man force in the industry. And trust you me, I don't know how much you interact with the industry who is hiring kids from colleges. वो सब खून के आंसू रो रहे हैं. सारे लोग. मैं जितने लोगों से बात करती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन सिस्टम में, मुझे ऐसा लगता है वी हैव टू स्टिक टू आवर कोर वैल्यूज़ and ensure that is delivered. For example, that's what we try and do it in our communication. जैसे कई क्लाइंट हमको ब्रीफ देते हैं, गरीब बच्चे दिखाओ, गरीब बच्चे दिखाओ, तो उससे क्या होगा, उससे ना लोगों में सिंपैथी बढ़ेगी. अब हम सबको मिलके, मुझे ऐसा लगता है, बहुत तूफानी वाला थॉट है, पर मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि आजकल तो एक मीम भी वायरल हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना वी जस्ट नीड टू स्टैंड फर्म ऑन who we are, what country we are, what is our value system. मतलब trust you me, ये सेशन सिर्फ इसी से, because I have immense respect for teachers, क्योंकि आज हम जो भी हैं, it is because somebody thought in हैदराबाद कि ये बंदी कुछ कर सकती है, तो उन्होंने वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, तो वो we had that immense respect for teacher. आज मेरा 13 साल का बेटा, जब वो 7 साल का था, उसकी टीचर ने बोला यू हैव टू कम ऑन सैटरडे, बिकॉज अगेन ही स्टडीज इन इंटरनेशनल स्कूल. ही वाज राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो बोला मॉम आई एम राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बोला व्हाट हैपेंड, हाउ कैन दे कॉल अस ऑन सैटरडे. आप समझ रहे चैलेंजेस क्या हो रहे हैं. पहले चैलेंज ये होता था कि अपॉर्चुनिटी कम है और काम किसी को नहीं करना है. Now, I would like to understand from you what is the mood of youth, and just
Sir, if they can. Yeah. भाई तो रिकॉर्ड मत कर इसको लेके। and then I came over to this side. अब यहाँ पे आया हूँ तो आई रियलाइज दैट बच्चों का तो मूड टेम्परामेंट एटीट्यूड मतलब राइट नाउ अगर मैं उनको उनकी वैल्यू के लिए अब देखो वी आर इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर देयर बेटरमेंट, ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट इटसेल्फ। उनको ये नहीं समझ में आता दैट वी आर पुटिंग इन एफर्ट फॉर, उनको कुछ अगर मिल रहा है इट इज़ टू देयर एडवांटेज, खाली डिग्री के पेपर से नहीं होना है, ठीक है। दे डोंट रियलाइज दिस थिंग के खाली पेपर से नहीं, बस पास हो जाऊं कैसे, एंड दे समहाउ वैल्यू दैट पेपर। मेरे को मैं काफ़ी सेंसिटाइज करने की कोशिश करता हूँ, बट अगेन अगर मैं सेंसिटाइज करता हूँ तो वो मोनोटोनस हो जाता है, अब उनको फिर डाइजेस्ट नहीं होता, फिर मेरे को वो विट लेके आना पड़ता है जो आप बोलते हो रिलेटेबल होने के लिए विट चाहिए। तो विट एंड सार्केज्म आर द टूल्स बाय विच आई कैन एटलीस्ट टच देम। आपको पता है मीम्स एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, मीम्स इज अ गुड वे। नहीं देते हैं कि इस कोर्स में होता क्या है। I'll give you another example. Like my son, because we travel a lot, वो एकदम बोला I want to be a pilot. I am sure. Okay. I want to be a pilot. ठीक है। अब because in IB you have to choose your courses now in grade 9. तो I actually got a pilot. A friend happens to be a pilot. और मैंने तो बोला कि तू उसको बता पायलट बेचारा करता क्या है। और जब उसने रूटीन बताई मेरे बेटे को, मेरा बेटा बोला I don't think I'll be able to work hard. तो वो वहीं कट हो गया। जो बड़ा चैलेंज है ना मैम, जो आप कह रहे हो, पहली बात मान लीजिए मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। अब यदि मुझे पता करना है, आप उसको थियोरेटिकली नहीं बता सकते कि व्हाट दे हैव टू डू। यू हैव टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री। आप बोल रहे हैं ना मैम बिजनेस एनालिटिक्स, ट्रस्ट यू मी, आई हैव बीन रनिंग कंपनी फॉर 15 ईयर्स, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई एम 23। मेरे को नहीं पता बिजनेस एनालिटिक्स आता क्या है अभी, आई एम सॉरी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप मुझे बता देंगे ये यहाँ पे फिट होता है, मैंने आपको फिलिप कोटलर का एग्जांपल दिया, अब तो पीपल लाफ एट यू। मतलब हमारी इंडस्ट्री में व्हेन समबडी से ना व्हिच बुक यू रेड एंड वी से फिलिप कोटलर, दिस इज हा हा हा, बिकॉज टेल मी व्हिच इंडस्ट्री इज लाइक यूएस इन अ कंट्री। तो अब I'll give you another example and how it has to be so micro because the world is changing. So there's another client that we handle out of Ujjain. They are a newspaper. Afternoon का जैसा अग्निबाण है अखबार, वो अखबार है। They came to us during COVID. और second generation था, तो बोला हमारा अखबार बंद हो जाएगा because you keep hearing ना newspaper is dying, पढ़ कौन रहा है। So I told him भाई मदद कर देंगे पर पैसे लगते हैं मदद के, मतलब because it has to be professional. He said, "No, I'm willing." And because our fees is very high, so I checked with him 3 times. I said, "Are you sure? Are you sure?" He said, "Yeah, we'll do it." Now you'll be surprised what we did. Now they are the second newspaper in Ujjain circulation wise. चुनाव आने वाले थे, हमने सिर्फ कॉमन सेंस लगाया, और वो कॉमन सेंस भी ऐसा नहीं कि हमको हमारे पास ही सब है। ऐसे मैं किसी को फ़ोन किया, मैंने यार आफ्टरनून अखबार का बिजनेस कैसे चलता है, बोलता है क्या करना है। मैंने बोला यार एक अखबार है उसका सर्कुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। उसने बोला बाबा ब्लैकमेल करो, ये करो। मैं बोला भाई नहीं, अच्छे लोग हैं, कोई ब्लैकमेलिंग वाला नहीं कर सकते, एंड दे आर वेरी गुड। मतलब हिज फादर इज़ अ अमेजिंग जर्नलिस्ट, और अंकल लाइक बस कि मेरे को तो पत्रकारिता करनी। अब पत्रकारिता आपको करनी, पढ़नी किसको है। तो फर्स्ट वी हैड टू ओरिएंट हिम कि ना पुट न्यूज़ विच इज़ मोर एक्सेप्टेबल, नॉट ब्लैकमेलिंग, बट यू हैव टू कम हाफ वे। इफ़ यू सी नई दुनिया, why it died was because it never changed with the time. He said ठीक है आप बताओ हाफ वे कैसे आना है। आप सोचो एक ट्रिक से वो बिजनेस की 200% ग्रोथ थी, और वो ट्रिक क्या थी, और वो बताया भी हमको किसने, एक ना अखबार का स्ट्रिंगर जो कि शाहजहाँपुर में बैठता है। अब वन थिंग इज दैट आई डोंट डू मैंडेटरीज, आई डोंट गूगल। मेरे को कुछ भी पता करना है ना, आई कॉल पीपल। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ यूथ का चैलेंज क्या है, मैं तो गूगल से ही पूछ सकती हूँ व्हाट आर द टॉप 10 चैलेंजेस ऑफ यूथ, आई विल नेवर आस्क गूगल। सो आई कॉल्ड अप दैट गाय, आई सेड कैसे कर सकते हैं। ही सेड मैम कुछ मत करो, अखबार का साइज बढ़ा दो। शाहजहाँपुर में बैठा स्ट्रिंगर, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। बोला भाई उससे क्या होगा, कहता अभी चुनाव आ रहे हैं, आपका एड रेवेन्यू डबल हो जाएगा, क्योंकि टैबलॉइड साइज में आपको सिर्फ हाफ पेज का एड मिलता है,
आप जैसे ही अखबार का साइज़ बढ़ाओगे आपको फुल पेज ऐड मिलेगा। ठीक है, अपन भी प्रपोजल लेके गए क्लाइंट के पास, पहला एक धमाकेदार आइडिया। क्या? मैंने बोला न्यूज़पेपर के साइज़ बढ़ाते हैं। ही सेड डन। अब उसकी मशीन आनी थी 80 लाख की और चुनाव थे 4 महीने बाद। बिकॉज दैट गाय, यंग गाय was, it was his last hope, he did that. And today they are number 2 circulating newspaper in Ujjain. The revenue that they have clocked in past 2 years, मतलब वो अब हमको ना वही एक ऐसा क्लाइंट है जो घर आके मिठाई और फीस दोनों देता है, क्योंकि उसका धंधा बड़ा है। अब ये जो सोल्यूशन है ना आपको कोई किताब में मिलेगा, ना कोई क्लासरूम में मिलेगा, ना गूगल पे मिलेगा। अब आप गूगल पे टाइप करो हाउ टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ऐड मोर कलर्स, डू दिस, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू मेक द यंगस्टर्स बिलीव। आई कीप टेलिंग, लाइक माई सन कम्स एंड टेल्स मी, मॉम यू डोंट नो, तो मैं बोलती आई वॉज बॉर्न बिफोर गूगल, राइट? That is the believability that we need to get in the younger generation. क्योंकि हर चीज़ तो पहले वो टाइप करते हैं। अब चैट जीपीटी आ गया, आपके सारे असाइनमेंट तो चैट जीपीटी पे ही हो रहे होंगे मैम, बस प्रॉम्प्ट चेंज करना है। अब मेरे को एक बच्चा बता रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग टू यंगस्टर्स, तो मैंने एक बच्चे को बोला तुम साले सब सेम असाइनमेंट लेके जाते हो, टीचर कुछ नहीं बोलती। नहीं आंटी, प्रॉम्प्ट ना आगे पीछे कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। एनीथिंग एल्स? आज मैं आपको स्ट्रगल बता रही हूँ तो मैंने वो स्ट्रगल देखे हैं। सो सपोज देयर इज अ डाउन टर्न इन माई लाइफ, आई विल नॉट हैव अ पैनिक अटैक, आई विल नॉट से ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई से ओके हो गया ना, चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब वहीं आप एक बच्चे को ये सिचुएशन दोगे ना, मतलब अनदर एग्जाम्पल आई कोट फ्रॉम माई होम ओनली, मेरे बेटे को, अब वो अगेन इंटरनेशनल स्कूल, उनको सिखाया फर्स्ट एड, ठीक है। माई सन के माम आई लर्न फर्स्ट एड, आई सेड बढ़िया। अगले ही दिन मेरी उंगली कट गई, मेरा बेटा मेरी उंगली देख रहा, खून देख, मॉम मॉम व्हाट हैपेंड, मतलब तूने कल फर्स्ट एड सीखा, आज अप्लाई तो कर उसको। द प्रॉब्लम इज इंफॉर्मेशन सब है, एप्लीकेशन जीरो है, एंड हेंस द कंट्री ऑफ नॉलेज दैट वी वर, वी विल नॉट बी एनी मोर। क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना कि बिल गेट्स इतना अमीर है, ये लैम्बोर्गिनी है, इसकी इतनी कॉस्ट है, वो आपके यहाँ के सागर के बच्चे को भी पता होगा लिम्बोर्गिनी, वो बोलेगा लिम्बोर्गिनी, मतलब उसको पता है वो कितने की आती है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, बट वो वहाँ कभी जाके इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, मतलब ही कैन नॉट बिकम एन इंजीनियर इन दैट प्लांट। एंड इफ यू सी अदर कंट्रीज, सो वी हैपन टू विजिट द लैम्बोर्गिनी प्लांट, द वे दे वर्क सो मेटिकुलसली, यू विल बी सरप्राइज्ड। सो इट्स इन Italy, and the name of the place is I'm forgetting the name. So there are villages. So एक village में Lamborghini बनती है, उसके अगले village में Ferrari बनती है, और सारे village के ही लोग काम करते हैं वहाँ पे। तो हम लोग plant visit करने गए, and everybody can visit the plant. यहाँ पे हर स्टेशन पे कार टाइमर चलता रहता है, तो आपका काम यदि पेंट करना है तो आपके पास 2 घंटे आपको पेंट करना है, वो अगले उसमें, और यदि आपने अपने टाइम से 1 सेकंड ज़्यादा ले लिया तो अलार्म बजने लग जाता है। आपकी कार दूसरे स्टेशन पे गई, उसका काम सीट की सिलाई करना है,
तो सिलाई करने वाला आदमी दर्जी जैसा नहीं लगता, वहाँ डूड जैसा लगता है वो, बिकॉज वहाँ स्किल की परवाह है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंगली स्किल घटती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आप सबसे पूछूं, आप यदि टीचिंग नहीं कर रहे हो, आप 10 काम कर सकते हो टू सर्वाइव, बिकॉज दैट्स हाउ वी ग्रू अप। बट इफ यू कट इट टू द यंगर जनरेशन, कैन दे डू इट? द ओनली स्किल दैट दे हैव इज दे वेक अप, दे ईट, दे स्लीप। I genuinely ask, and it's not that I am ranting about them. ये एक बड़ा question है, and how it can be addressed by institutes. जी सर। In childhood we will do simultaneously 10-15 works at a time. जी। आज बच्चों को आप बोलोगे तो सुई में धागा डालना नहीं आएगा, सिलाई करना नहीं आएगी, नहीं आएगा इस ड्राइंग पेंटिंग प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, जबकि हमने सब स्कूलों में, केवी स्कूल्स में सब किया हुआ, सीखा हुआ है। एंड वी विल परफॉर्म हैंडपम्प से, गाँव में रहे हैं तो वो सब काम भी किए, लेकिन आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं आता और ना सीखना चाहते हैं वो। दैट इज द ऑनेस्टी अब आपको बच्चे को सिखानी पड़ती है। हार्डवर्क आपको बच्चे को बोलना पड़ता है, ओके प्रभु समबडी इज सेइंग कि हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, तो बच्चा बिलीव करेगा हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में हो नहीं रहा ना मैम। तो विच इज वेरी गुड इफ योर किड्स आर डूइंग इट। सर मैम, मेरे को जहाँ तक लगता है समस्या ये है कि हम बच्चों को हारना नहीं सिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि वो फेलियर की शिक्षा देनी पड़ेगी, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक ठोकर नहीं खाएगा, ना उसमें वैल्यूज़ आएंगी और ना उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जहाँ तक हम जो दे रहे हैं, हम केवल सूचना दे रहे हैं बच्चों को ऐसा करना। ये मेरा मानना है आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि केवल हमें वी आर नॉट एजुकेटर्स, वी आर हेयर टू गेट द सैलरी टू सर्वाइवर्स, मेक आउट सर्वाइवर्स। हम शिक्षा वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं सर। सर्विस इंडस्ट्री हो गई अभी। बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्री हो गई है वो ना। हाँ, आप लोग प्लीज मुझे कविता बोलिए। नो मैम, प्लीज प्लीज कॉल मी कविता। हाँ Ma'am, I'm so at school. हाँ। So they have the activity every month. They used to tell their kids कि the one thing which you have to eradicate from your life. मतलब 4 साल का बच्चा क्या लिखेगा? Friends, car, book, something, something, something. एक बच्चे ने लिखा life. Now just imagine वो हम chemical लोचा जो बोल रहे हैं ना, हम burnout कब बोलते हैं? Burnout state is the state when you're not able to take decisions. Yes. When you're totally stressed out. Eustress is positive, burnout is the negative state. Now that 4-year kid is specifying life I don't want. It means how much he's in pressure, psychologically, parental, whatever it is. So whenever we go in the class, तो मेरे husband ने सीधा बोल के रखा है, बच्चा पढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा इंटरवीन मत करना, बिकॉज योर सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं वहीं पे फिर वही बात पे आती हूँ मैम, व्हाट इज प्रेशर? जो मेरा जनरली सबसे सवाल है, हम सब भी अपनी लाइफ, मतलब आज यहाँ आने के पहले मेरे को 25 काम करने थे। माई हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग, आई हैड टू सेंड माई सन टू स्कूल। फिर कुशवा सर ने बोला नहीं तुझे ये सेशन लेना है, मेरे ऑफिस का वर्क हियर, आई गो बैक, आई डू माई ऑफिस वर्क। which gives mental resilience. अब दिन भर स्क्रीन ही है, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, एंड दैट इज व्हाई वी फेस्ड आफ्टर कोविड। अपन ने देखा कि मेंटल हेल्थ के बहुत सारी अवेयरनेस आ गई, बहुत बढ़ गया था, बिकॉज वी वर रिस्ट्रिक्टेड एंड और फिजिकल एक्टिविटी वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो ये बच्चों में जो पहले कल्चर था अपना के रोज शाम स्कूल के बाद हम तो खेलते ही खेलते थे, ठीक है। अब नाउ देयर गेम्स आर आल्सो सोफिस्टिकेटेड और वो एकदम हाई फाई टाइप। मैम आपका तो अब एक्सेप्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। 12 साल की बच्ची 13th फ्लोर से कूद गई। अब बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने अपने आप को बोला यार ये क्या हो रहा है, लाइक आई एम आस्किंग यू टुडे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस कौन सा मैं देश बदल दूंगी, बट अगेन आई फील आई विल प्ले माय पार्ट। व्हेन वी केम बैक तो वी वेंट टू जिम, एक बंदी मुझसे पूछती
कि बच्चे को कितना डांटना चाहिए. शी इज डूइंग ट्रेडमिल. पंजाबी है, थोड़ा लाइट हार्टेड है. मतलब तू बता कितना डांटना चाहिए. बोले मैंने तो, मेरे हस्बैंड ने बोला डाटा वाटा मत कर, फांसी पे चढ़ गई तो क्या करेंगे. मैं ठीक है. तो बोले अब मैं 2 दिन से उसको डांट नहीं रही हूँ ना, वो मुझे आंखें दिखा रही है. मतलब करें क्या. एंड एवरीवन आई मेट इन माय एज ग्रुप, एवरीबडी वाज आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन कि यार बच्चे को डांटे कितना. जैसे आपने बोला कितना कंट्रोल करें, पढ़ रहे हैं पढ़. Then we went and met a psychiatrist and we done a story on it. So there's a product that we run called Non-Stop Bharat, and we try to educate people on such issues. अब वो psychiatrist भी मुझसे बोलते हैं ऑफ द कैमरा, कहते हैं क्वेश्चन that I asked everybody was 5,000 लोगों की सोसाइटी में आप देखेंगे ना, कोई कुत्ते को वॉक करा रहा है ना, कुत्ते को ही वॉक करा रहा है, वो इंसानों के साथ वॉक नहीं करता है. वो पूछेगा भी नहीं कि हाउ आर यू. जो 2 करोड़ के फ्लैट में रहता है वो 1 करोड़ वाले फ्लैट को ऐसे दिखता है, अच्छा यू. और बेचारे 50-60 लाख वालों को तो देखते ही नहीं, वो बोलते हैं अच्छा यू. व्हाट हैज हैपेंड इज, मान लीजिए जब वो मेन गेट से अपने घर जा रही थी, यदि कोई उसको रोक के पूछता हाउ, क्योंकि अब क्वेश्चन ये है ना कि हु विल बेल द कैट. आज व्हाट आर वी वरीड अबाउट, मेरा बच्चा ठीक हो जाए. लाइक माई प्लान फॉर माई सन इज भाई तू यूएस चले जा. क्यों? क्योंकि जो तू बातें करता है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ब्लैक लाइफ मैटर्स, वो सब यूएस में ही होता है. इंडिया में तो हम 150 करोड़ हो जाएंगे ना. जो बेसिक लोगों का स्ट्रगल है वो तो वही है. तो जो प्रेशर वाला क्वेश्चन है ना मैम, आई रियली वॉन्ट डू समथिंग अबाउट इट इन कम्युनिकेशन, कि एक्चुअली माँ बाप प्रेशर में है. वी वर्क 24/7, वी वर्क 7 days a week. ये जो बच्चे आपके आते हैं ना, I don't want to name a university. We went, somebody took me there. वहाँ पे ना मैम 150 बच्चे बैठ के ना गेमिंग कर रहे थे. और उसमें से one girl came, I got to know because one girl came to me. She said she spent 30 lakh rupee and her mother happened to be a MLA. और उसकी मॉम का मुझे फ़ोन आया और उसने अपने घर पे स्टोरी सुनाई थी कि कोई लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. तो उसकी मदर ने मुझे फ़ोन करके बोला यार आप, गांव से है वो सागर के पास, तो बोले आप देखो इसको क्या हो गया. और वो लड़की मतलब ऐसी है ही नहीं कि उसको कोई ब्लैकमेल कर सकता है. तो पहले तो मैंने लड़की को देख के उनको फ़ोन किया, मैंने इसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है. अब आप सोचो गेमिंग में यदि आप बच्चा 30 लाख रुपए डुबो रहा है पेरेंट्स के, तो वो इज़ अंडर प्रेशर. और उसकी मदर ने पता है मुझसे क्या बोला, आप उसको बोलना कुछ मत, तो बस उसकी टिकट करके एक आदमी को उसके साथ भेजा दो. दैट इज़ अ प्रेशर दैट वी आर लिविंग अंडर. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ कम्युनिकेशन अबाउट गेमिंग. आपको क्या बोलते हैं, 10 लगाओ 1 करोड़ पाओ. आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज सो 2 मिनटर. मैगी 2 मिनट में खाओ, खुश 1 मिनट में हो जाओ, एंजाइटी 30 सेकेंड में आ जाएगी. दैट इज वेयर द चैलेंज इज. नाउ अनदर क्यू दैट वी कीप गेटिंग ऑन इंटरनेट इज यू विल ओनली रीड, आई विल टेल यू. और पता है फिर क्या हुआ, आप उस वीडियो को 200% देखोगे. दैट्स क्लिक बेट. और वो लड़की अंधेरे में जा रही थी, खत्म. हम सब जो इस कमरे में बैठे हैं ना, हम सब क्लिक करेंगे. अब मैं वही बोलूं, वो लड़की अंधेरे में कुत्ते को बचाने जा रही थी, कोई नहीं देखेगा. Nobody will watch it. You just check, we check our behavior ना, हम सबका भी. Now that is, see what is coming. This is like the closing and that was the build up. What we see is actually reflection of our behavior, which is increasingly changing. Which is increasingly. आप हम सब में खुद में आप अपने पेशेंस लेवल भी चेक करना. आई डिड आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स लास्ट मंथ. 3 दिन में मौन में थी, तो सबसे अगेंस्ट उस मौन की थी मेरी मदर. मम्मा बोलती मौन में क्या जाना है, बाबाओं के पीछे थोड़ी ना पड़ना अपना. आई एम लाइक लेट्स डू इट. टेल मी हाउ मच ऑफ पेशेंस वी हैव. फादर और बेटी एक जैसे दिख रहे हैं या एक जैसा बिहेव करते हैं, तो कई बार जब बेटी वो बुरी हरकत करती है ना, सबसे ज़्यादा चिढ़ फादर को होती है, क्योंकि उनको पता है उनमें वो बुरी हरकत वो भी करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इंक्रीजिंगली विद द सोसाइटी, एंड समवेयर ऑल ऑफ अस हैव टू स्टॉप इट. आई डोंट नो हाउ, आई डोंट हैव एन आंसर, बट समवेयर आई डोंट नो हाउ दीज मॉरल्स कैन बी ब्रॉट बैक, एंड इट कैनॉट बी ब्रॉट बैक बाय प्रीचिंग. यू विल बी सरप्राइज्ड, वी डोंट कंज्यूम TV at home. We read books.
क्योंकि मैं टीवी देख के मेरे बच्चे को नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल बच्चा है, वो तो बोलेगा आई डायल 100. ये बात अलग है, पुलिस नहीं आएगी, बट दैट इज द माइंडसेट ना, दे आर क्वेश्चनिंग यू एवरी डे. आज की डेट में इफ आई एम अ बॉस, आई हैव टू नो मोर देन माई कलीग्स, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर अथॉरिटी. एंड हेंस मतलब पहले के ज़माने में टीचर और स्टूडेंट में बहुत गैप होता था नॉलेज में. अब जो आप कंज्यूम कर रहे हो ना, आपसे पहले वो कंज्यूम करके आ रहा है. तो आई जस्ट क्लोज इट कि वी ऑल हैव टू बी एज क्विक and as updated as all of them. If they are consuming memes, you should know what memes is. If they are consuming reels, you should know what reels is. If they understand ki what are the top 5 things that, you know, like मेरे को याद है कि negative reinforcement, positive reinforcement HR में सिखाते थे. What are the top negative things that you can happen to a person in an office? What are the top 5 positive things? And that is how education can be made more interesting. This is what I feel. I could be wrong, but we all have to get into their culture. बोलते हैं ना, to know your enemy is the best way to defeat them. So that is it. Thank you so much. And if you have any more queries and anything, just feel free. You have something? I hope it was. It was amazing, ma'am. मतलब the last thing I want to do, sir ने बोला lunch की बात कराना है, मैंने बोला नहीं हो पाएगा. Professor Pankaj sir for giving a formal vote of thanks to ma'am. Thank you for this opportunity, sir. Ma'am, we started this journey 5 days back with getting inside the mind of the entrepreneur. And now here we are talking about the minds of our students and the current generation. So the journey has been fantastic, but the today's session was exceptional. I'll give you a few pointers why it was. First, it was impromptu and very informal. Second, it was candid, up to the mark, matlab, there was no filter at all. Third, it was relatable, as you also went through all those situations and problems with your new recruits, and we go through that every day. And the kinds of insights, the current world, which is actually quite ambiguous, and even students and the current generation, where they actually are, we cannot fathom, and we cannot understand what is their mindset and what they think, how do they think. So a very heartfelt thanks to you, ma'am, for shedding some light on that. Thank you so much. Outside for a group photograph with the resource person. Thank you so much, everyone. Welcome to the 5th day, second session of Adult FTV program, sponsored by AICTE Academy. Now I request you to please open up article number 2 in your mobiles, and we'll have 15 minutes of time for the article analysis, and then we can discuss the article right here. Thank you. I would request Professor Vinita ma'am to give her interpretation on the article 2. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. The article 2 that we are studying is about women entrepreneurship. The study is on 36 female entrepreneurs, and it is carried out in Albania. It is basically using chi-square test. It has 2 research questions. First is about what are the motivational factors for females that they get into entrepreneurship, and what are their supporting factors and or discriminating factors, or what they do not like, or what they have heard that females cannot enter the business, or they do not get loan approvals, or any all such reasons.
The study concludes that there are various motivational factors and supporting factors that have helped female entrepreneurs, but as a female, they are not able to recognize that this journey is important. So somewhere the awareness is lacking among females to be entrepreneurs. Thank you so much. Now I would like to request Professor Gautam sir to enlighten us. Sir. Thank you, Pankaj sir. So we are talking about the Article 2, which is based on women entrepreneurship challenges and perspectives of an emerging economy. So what I have understood from this article is that in this, this is not an article for me, this is a case study specifically. So this is woman, this case is basically on specific challenges faced by women entrepreneurs in unique and social economic contexts, enriching discussion on entrepreneurial across culture. If you have read this, this is according to GEM 2022B, women developing economics are much more likely to start their own businesses than those in high-income countries. The case is based on a country, Albania, which is in southeastern Europe, located in Balkan Peninsula. The major key factors which has been outcome from this article is motivational factor. Family support and inherent resource plays a crucial role in encouraging women to start business. Some believe women can bring unique advantages to their entrepreneurial journey. Challenges faced as per this article is financial, societal expectations and lack of industrial support for the women's. Second is cultural factor and post-commitment dynamics entrepreneurial landscape. So there are many more factors which are affecting women's in Albania, and this needs to be faced. This is an open case that needs to be more addressed, and thank you from my side. Now I would like to request Anubhuti ma'am to please share her thoughts on the paper. Hello everyone. As we can see, this paper is dependent on the women entrepreneurs in Albania. So I have studied on this paper and came to know that the researcher has studied very deeply in this research paper, and I have came to many perspective that how their entrepreneur journey has started and in which perspective they affected them more. In the first perspective, the researcher has shown that the age differentiation, 75% of the women entrepreneurs are in the criteria of 21 to 30 age. So they are very active and proactive at that mode. So they want to go to in an entrepreneur. So and second is that in which sector have they come from. Most of the women are come from 28% women are come from the family businesses, and 36% are come from the private sectors. So they want to go to in the business to have a own standing in the Albania, their country culture, as I have read about. As we can see, motivation to start business in the questionnaire, researcher has given them options. So they have selected 3.9% have selected creating a flexing working schedules. The women want working schedules so they can have a more work-life balance to handle their work life and also their personal life.
So this why most of the women want to go to into entrepreneur business. And I also studied that that countries has more of a food industry, food culture, food industry. So most of the entrepreneur are 20% are in the food industry, and others 49% are in the hotel industries. So we came to know that their minds, women mindset are changing depending on the what culture and what the motivation has they seen in their life. So they decided to become entrepreneur in their country. Thank you. Now I would like to welcome Hemani sir to express his thoughts on the paper. Thank you, Pankaj sir. This study is also conducted on very small sample, and it is also a descriptive statistics which are used in this study. 47 questionnaire are spreaded, and out of 36 are respondent. Then I think for a country like Albania, it is quite a introductory study on entrepreneurship, which is focused on women. So this paper recommended government should initiate many initiatives to empower women in some sense, and the cohort age which are given in this study, 21 to 30, which are more viable for in this age. Women are more aware, and they want to do businesses. So in my sense, this study can be considered as an introductory study, but if we increase sample size and study thoroughly, then we can find some interesting glimpse on Albania, because one thing is mentioned in this paper, it is post-communist nation, so that is also a aspect which we cannot ignore. Thank you so much. I would like to welcome Shweta Vyas ma'am to express her thoughts on the paper. Thank you, Pankaj sir. As this is basically a research paper which is on the title Women Entrepreneurship Challenges and Perspectives of an Emerging Economy. The paper is being published in the Journal of Department of Business Administration, APCO University, Tirana, Albania. Means this is basically a case of Albania. We can say that they have worked on the challenges which were faced by the women who were living at Albania. They faced a lot of problems, as we have seen today's session of ma'am was Kavita ma'am. Okay, I forgot the name. Kavita ma'am told us that female basically fan on कर दीजिए, पानी ला दीजिए, दवाई दे दीजिए, खाना बन गया. The mentality that as we people are living in India, so we all have, we female usually face such problems, and these kind of problems were also faced in Albania also, that I have gone through this study, and what I understand with this. So they people have the research, the scholar who were doing the research on that, he has pointed out all the challenges which being faced by the female of Albania, and tried to find out. With some, there were 3 hypotheses, 1, 2, 3. What about the family people think about the women? What about the spouse basically thing? And when do they feel the discrimination with the different other gender into the society? So such kind of hypotheses were actually being taken into the research, and it's been given a conclusion that if female entrepreneurs will be like
treated properly, if they will not get any kind of discrimination into the society, so they can help in the economic growth of any country, like Albania. Thank you so much. I would like to call Neha Pandey ma'am to express her thoughts on the paper. Thank you, Pankaj sir. So most of the point I think Sweta ma'am already cover कर चुके हैं. So yeah, so this study was conducted in Albania on women entrepreneurship and their challenges. So in this study, it has been told that most of the female entrepreneur are those whose family background is in business, and women with non-entrepreneurship family background are facing challenges. So जो इसमें मेनली बोला गया है वो यही है कि जो भी फीमेल्स एंटरप्रेन्योर हैं या तो उनका बिजनेस बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है तो वो है, बहुत रेयर में ही है कि किसी ने बैंक से लोन लिया हो, नहीं तो मोस्टली फैमिली लोन लेकर उन्होंने स्टार्टअप किया है. और मेनली इसमें यह है कि जो नॉन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड फैमिली बैकग्राउंड से फीमेल है उनको चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बिकॉज बैंक भी उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा और सबकी थिंकिंग उसमें ये है कि फ़ीमेल सिर्फ घर में कुक करने के लिए या फिर बच्चों को देखने के लिए हैं, बाहर वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते, वो सक्सेस नहीं होंगे. और मेनली इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है फीमेल्स की वो या तो स्किन और कॉस्मेटिक से रिलेटेड में है, ड्रेसिंग में है या फिर जो है फूड इंडस्ट्री में है. आईटी में सबसे कम एंटरप्रेन्योरशिप देखा गया है वुमेन का, बिकॉज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. जबकि आईटी में अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग वर्क जो है वो वुमेन्स ही हैंडल करती हैं. तो अगर गवर्नमेंट लोन फैसिलिटी देती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है एंड जो ये रूढ़वादी टाइप ये चीज़ें हैं कि सिर्फ वुमेन्स जो है घर में ही वर्क कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो करेंगी तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, अगर ये माइंडसेट हम चेंज करते हैं तो इससे उनको सपोर्ट मिलेगा और वो जो है इसमें सक्सेस मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो है वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएंगी. थैंक यू. We are at the closure of day 5 of Atal FDP program, day 5 of 6-day program, and today's morning session was taken by our director Vivek Kushwaha sir, and the second session was taken by Kavita ma'am. Both the sessions were extremely enlightening for us, and next I hope you all are looking forward for the last day of the program. Thank you.